Hello, Standard 12, JEE NEET. Let's start the practice of PYQs, JEE NEET, chapter number 3, Standard 12 once again. So शुरू करते हैं. किसी भी JEE NEET के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका कौन सा है? सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को स्टोरी की तरह, जस्ट लाइक अ स्टोरी, रीड करो, क्लूज निकालो, क्या किया है, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, उसको अच्छे से समझो. उसके बाद में रिकॉल द कॉन्सेप्ट एंड देन आफ्टर फॉर्मूला पुट वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. लेकिन आंसर लिखने से पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना. यू हैव टू लुक एट ऑल द ऑप्शंस प्रॉपरली बिफोर टिकिंग एनी आंसर, फाइनली क्लिकिंग एनी आंसर, बिकॉज the answers might be little confusing. The minor variations might confuse you guys, so that we need to be very careful. So look at this first question. Let us attempt this. How to solve question number 1. तो शुरू करते हैं. Let's start. A constant voltage 50 volt is maintained between point A and B. So the battery is given over here, which maintains potential difference of 50 volt between these two terminals of this circuit. Now the current passing through branch CD, we have to calculate current passing through this arm CD, whichever direction it might go, but after calculate current passing through this means we have to find out current passing through CD. This was asked in NEET 2025. Let's find out. It's very easy question. First of all, you need to see one thing. If these 2 points are in contact with each other, ये दोनों एक दूसरे के साथ में contact में है, therefore these two resistors will be in parallel combination. Once again, it gets branched over here. It is in contact with 2 ohms resistor and 4 ohms resistors over here. So this is your actually the circuit analysis which we've done. Now according to this circuit analysis, let us find out the total resistance of or equivalent resistance of this circuit. First of all, these two are in contact with parallel. So according to formula which I have taught you, product of those two resistors upon sum of those two resistors means 3 by 4 ohms is the equivalent resistance of these two resistors. And find out the equivalent resistance of these two the way we have done over here. यहाँ ऐसे किया वैसे इधर करना है. 2 into 4 product of those two divided by sum of these two resistors will give you 2 by 4, 8 by 6, 4 2s are 3 2s are, the resultant is 4 by 3. Once again, look at this. This 3 by 4 and 4 by 3 resistors are again in series connections in this AB terminals. So adding these two, according to series formula, 3 by 4 plus 4 by 3, because in series we just have to add R1 plus R2. The LCM is 12. Multiply this by 3 and this by 4. As per LCM's rule, 25 by 12 ohms is the equivalent resistance of this entire circuit. तो इतना तो हो गया. इस पूरे सर्किट एनालिसिस करके हमने देख लिया कि इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है. हाउ मच रेजिस्टर इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू. तो इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दिस इज this much, 25 by 12. Now let's find out the current passing through this one. So in order to find out current passing through this, V is equal to IR, which is Ohm's law. This is something which we will use. And since we have to find current, it is V by R. V means potential difference, which is 50, and the resistance, equivalent resistance, which is calculated right here, is 25 divided by 12. The denominator of the denominator goes into the numerator. So when you cancel this out, 24 ampere is the total current, net current passing through this circuit. Matlab, the current passing through this circuit is 24 ampere. क्या होता है इस करंट का? This current, as per the branch rule and Kirchhoff's branch rule, you can say that this current, what happens is branched, it gets divided into I1 and I2. Okay, or rather you can say, if this one is I and this is I1, so I can say this is I minus I1. पूरा करंट 24 ohms I है, उसमें से इधर जाएगा कुछ और बाकी का जाएगा इधर. I में से I1 जितना बाद माइनस हो जाएगा, remaining one will come over here. Now the I1 current passes through this resistor. Once again it reaches to some junction. फिर से यहाँ पर एक जंक्शन आ जाता है, फिर से यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा.
मान लो करंट पासिंग थ्रू दिस इज I3, if the current passing through this arm CD is I3, तो यहां पर कितना करंट जाएगा? I1 minus I3. This is the current scenario, and current passing through this terminal over here is I minus I1 plus I3, because ये मिल रहा है यहां पर. This is coming I plus I minus I1. This I3 is beating it, so it gets added. The resultant current through this 4 ohm resistor is this one. Okay, so this is how we can find out the current passing through this terminal. Now, or you can find out in a different way. That's very easy way. I'll show you the next easier way. There's shortcut. Let's remove this. There is one more shortcut which we can use. See, what happens is, if you consider this arm, these two. So here these two are in contact with each other, these two are in contact with each other. तो यहां पर क्या है कि ये हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट है, और जो करंट आ रहा है, करंट इज 24. तो करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दिस टू आर्म्स, एंड वी ऑलरेडी हैव लर्न, मैंने क्लास में ऑलरेडी सीखा है, जो जेडब्ल्यू नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, एंड दैट इज करंट डिविजन रूल. कैसे होता है करंट डिविजन रूल? ये 24 जो डिवाइड होगा फर्स्ट में से, वो कैसे होगा? तो फर्स्ट में से पास होने वाला करंट कुछ ऐसे होगा कि इसका खुद का नहीं, इसका रेजिस्टर, मतलब अपोजिट वन, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. सो इसमें कितना करंट पास होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो दिस डिवाइड बाय एडिशन ऑफ दिस टू, 1 plus 3, and current passing through the lower one, if I call it to be I2, then it will be, ये 24 यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इसमें पास होने वाला करंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 plus 3. तो यहां पर मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 3/4 इंटू 24, 6, मतलब 18 एम्पियर current will pass through this terminal. This was Kirchhoff's law which I used, but right now it is very easier one to find out the current passing through these, because these two terminals in contact with each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ में टच है, यहां पर भी टच है, तो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, फिर यहां पर करो कैलकुलेशन, तो 1/4 इंटू 24, तो यहां पर कितना करंट पास होगा? 6 एम्पियर ओनली करंट पासिंग थ्रू I2. इफ आई कॉल दिस एज I1 एंड I2. अगर फिर से मेरे को यहां पर I3 और I4 फाइंड करना है, तो कैसे होगा? यू कैन यूज द सेम थिंग बट फॉर दिस लूप. This loop. Here's resistor 4. This is again, since 24 ampere current actually is being distributed into I1 and I2, और I1 and I2 फिर से क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है, मीट हो जाते हैं, they meet each other. Therefore once again current कितना बनेगा? यहाँ पर बनेगा 24. फिर से यहाँ पर 24 ब्रांच हो जाएगा. तो यही करंट डिविजन रूल को यूज करके हम लोग करेंगे बेटा. बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी. यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. करंट पासिंग थ्रू दिस 2 ohm रेजिस्टेंस से I3, तो ये 24 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कुछ ऐसे होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. 4 डिवाइड बाई 4 plus 2, that is 6. 6 4s are, so this is 16 ampere. Current passing through this is 16 ampere. And if I want to find the current passing through 4 ohms resistor, तो उसको भी ऐसे करेंगे. 24 टोटल करंट है, it will get distributed कैसे? 2 डिवाइड बाई sum of these two. 2 डिवाइड बाई sum of these two. So 6 4s are, and the current is 8 ampere. So अब मेरे को सारे करंट मिल गए. चाहिए वो भी मैंने फाइंड कर लिया, नहीं चाहिए वो भी फाइंड कर लिया. नाउ चलो देखते हैं कैसे होता है. करंट पासिंग थ्रू CD मेरे को फाइंड करना है. तो यहां पर मैं देखूंगा कितना करंट आ रहा है. तो करंट I1 इधर कितना था? 18, और इधर कितना करंट जा रहा था? तो इसमें 2 ohms में रेजिस्टर में लिया था 16 एम्पियर करंट, सॉरी करंट. तो इसमें कितना करंट बचेगा? तो I1 आ रहा है, 16 बाहर निकल रहा है, तो बाकी का कहां पर जाएगा? इधर जाएगा. बिकॉज एज पर जंक्शन रूल, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. इफ आई कॉल दिस एज I dash, so what I'm going to get is 18 minus 16 is equal to I dash, है ना? तो I1 18 में से 16 चला जाएगा, बाकी का इधर बचेगा. So I dash is equal to 2 ampere. My answer should be 2 ampere. तो ये देखो 2 ampere is my answer. तो कैसे किया? वेरी इंपॉर्टेंट रूल, CDR, करंट डिविजन रूल, जो मैंने सिखाया था एट द टाइम व्हेन आई एक्सप्लेन दी करंट डिविजन रूल इन कैपेसिटर.
चार डिवीजन रूल, सॉरी, इन केस ऑफ कैपेसिटर. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2025. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली. क्या दिया गया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना हमारा रूल है, हमारा काम है. चलो करते हैं. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक आर ओम्स रेजिस्टेंस, उसके कितने टुकड़े किए हैं? 8 इक्वल पीसेस. इट हैज बीन स्प्लिटेड इनटू 8 इक्वल पीसेस. तो एक का रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं इसको आर डैश बोलूं और या फिर स्मॉल आर बोलूं तो कितना हो जाएगा? सिंस इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस, तो रेजिस्टेंस विल बी आर बाय 8 ओम्स. Now, from this pieces, two equivalent resistance are made by adding 4 of this in parallel. तो इसमें से 4 को पैरेलल किया, उसका इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे. And then 2 sets are added in series and 2 sets are added in series. तो 2 को हमने ऐड किया सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में. Then the net effective resistance of the combination is this. और उसके बाद में हमको क्या करना है? उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है. इक्विवेलेंट इस टोटल का कॉम्बिनेशन का कितना होएगा वो फाइंड करना है. सो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. अच्छे से समझो क्या किया है क्या नहीं किया. 8 ओम्स, एक 8 पीसीस किए, किसके 8, तो ये हमारा एक का रेजिस्टर हो जाएगा R by 8, है ना. फ्रॉम दिस the two pieces, two equivalent resistance are made by adding 4 of these together in parallel. 4 को एक साथ में ज्वाइन करके, कैसे ज्वाइन किया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो 4 को ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल. देन दीज 2 सेट्स, मतलब ऐसे 2 सेट उन्होंने बनाए, ऐसे 2 सेट बनाए पैरेलल पैरेलल के, 4 इधर 4 इधर, 4 के सेट पैरेलल किए. उसके बाद में ये 2 सेट बने, 2 सेट, ये 2 सेट बने. उन दोनों सेट को कैसे कनेक्ट किया? इन सीरीज. तो इन दोनों सेट को अभी सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग. तो अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है. तो वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन. जब भी पैरेलल होता है तो आपको पैरेलल का रूल लगाना, या फिर अगर सारे के सारे इक्वल है तो हम बोलेंगे कितना होगा, वो डिवाइड हो जाएगा. एक का रेजिस्टेंस है R by 8, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फिर से डिवाइड हो जाएगा बाय 8 बाय 4, सॉरी 4 डिवीजन उसके करने. तो कैसे हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस? R by 32, sorry, R by 32 is the equivalent resistance of this one. If I call this as R1, it's pretty easy. आप सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर R रेजिस्टर, सॉरी N नंबर ऑफ रेजिस्टर्स of equal resistance N are connected in parallel, तो टोटल हो जाएगा R by N. अगर N रेजिस्टेंस, N number of resistors of resistance R are connected in series, तो टोटल हो जाएगा NR. सीरीज में ऐड થાય and parallel gets divided if they are equal. So same here, R by 32, but R by 2 and R by 2 are in series combination once again, so add these two. So you're gonna get R divided by 32, 16 to the. So the equivalent of all this resistance, if I call this as R dash, so R dash is equal to R1 plus R2. R by 32 plus R by 32 will give you R by 16. So R by 16 should be my answer. The combination of these two is R by 16 and this is my answer. आई बात समझ में? ये पैरेलल है, ये दोनों सीरीज में. तो ये अच्छे से याद रखना है. इसके अंदर याद रखने वाली सबसे बड़ी चीज जो है ना, ये है कि जब भी आपको R N resistors, suppose N resistors are connected in series, the equivalent of all this is gonna be N times R. And if the same R are connected in parallel combination, then the equivalent resistance is going to be R by N. Okay, so if you remember this, you can do it very easily. Next question, ये भी 2025 का है, तो इसको भी साथ में ले लेते हैं in this video. Let's see. First of all, the current passing through the battery in the given circuit is dash. तो बैटरी में से कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करना है. करंट पासिंग थ्रू बैटरी मतलब यहां से पूरा करंट कितना पास होगा, ये पूरे में से वो हमको फाइंड करना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बैटरी है,
बैटरी के साथ में कुछ यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सारा रेजिस्टेंस है, तो हमको सर्किट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप सर्किट को अच्छे से एनालाइज करोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वन थिंग विच इज वेरी एविडेंट, यू विल बी एबल टू सी वेरी इजीली दैट हियर these two are here you can find that these two are arms and these two are arms, different arms of this resistor, this combination of resistor. So here you can see that this is going to be actually eliminated from this, क्योंकि कनेक्शन यहां पर की है, कनेक्शन यहां पर की है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं E यहां पर लिखूं, if I write this B over here and connections are made like this, remaining resistors I am ignoring right now, E नहीं साथ है, E के साथ में यहां पर A, यहां पर D, तो ये हो जाएगा मेरा काइंड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या हो जाएगा मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर E वाले आर्म्स में, E और A के बीच में क्या कौन सा वाला है, 3 ohms, A और B के बीच में कितना है, 5 ohms, E और D के बीच में 1.5, and between this B and D is 2.5 volt, 2.5 ohm, and between E and D this is 1.5. So as you can see, this upon this, 3 divided by 1.5 is 2 and 5 divided by 2.5 is also 2. So here my Wheatstone bridge is balanced, so that any resistor which is connected between A and D, इन दोनों के बीच में जो भी कनेक्ट है उसका कोई करंट पास होने वाला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये वाला पूरा मैंने निकाल दिया, देख लो यहाँ पर, अच्छे से देख लो। नाउ अब हमको क्या देखना है कि इसमें कौन इजीली कनेक्ट, इजीली हम सीरीज और पैरेलल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पूरा दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में मतलब 8 + 3 विल बिकम 8 ohms, और यहां पर दूसरा वाला कौन सा है, ओके 1.5 एंड 2.5 एंड 1.5, तो ये हो गया 2 + 1 3 एंड 4 ohms। ये 8 ohms और ये 4 ohms कैसे हैं दोनों, तो दे आर लाइक दिस, तो these two are in parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में, याद रखो मेरी टेक्निक, 8 multiplied by 4, 8 + 4, 8 4s are 32, 8 + 4 12, right? Now cancel it out, 4 3s are and 4 8s are, so 8 by 3 is my answer, 8 by 3 is my answer। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 multiplied by, keep it over here, 12, 4 3s are, so 8 by 3 ऐसे भी आ सकते हैं। So it is up to you। Now इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल इक्विवेलेंट इज माय 8 by 3। Now 8 by 3, ये 1.5, ये 5.5 और ये वाला 1 by 3, ये सब कैसे हो गए सीरीज में, इसके साइड में इसमें पास होने वाला सारा करंट इसमें जाएगा, ये इसको एक कंसीडर करो तो इसमें भी आएगा, तो ये तीनों के तीनों कैसे, चारों के चारों 1 2 3 and 4, ये वाला इसका इक्विवेलेंट और ये वाला सारे कितने और कैसे हो जाएंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो 8 by 3 plus 1.5 plus 5.5 प्लस ये 1.1/3 वाला, सबको ऐड कर लो, दिस इज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट, ठीक। सो इसको ऐड कर लो तो 5 + 6, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो इसको मैं यहाँ पर 7 लिख सकता हूँ, टेकिंग LCM 3, LCM is 3। So now solve this out, 8 + 21, 7 3s are 21, plus 1 9, 10 30, 9 10 20 30, 30 divided by 3 is equal to 10 ohms। So 10 ohm is my equivalent resistance। याद रखो, still I have to calculate what current passing through the battery, current in this one। तो इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब बैटरी एक ही रह गई मेरे पास, और सारे ये जो इसका सर्किट एनालिसिस करके हमने फाइंड किया कितना हुआ, ओनली 10 ohms। इसका कितना है, वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, तो करंट इसमें से कितना पास होगा बैटरी में से, ये फाइंड करना है, हाउ मच करंट विल पास थ्रू दिस बैटरी। आई कैन फाइंड इट वेरी इजीली, V is equal to IR, which is my Ohm's law, I is equal to V by R। So now V, voltage is how much, 5 volt, current is how much, resistor sorry, is my 10,
So 1/2 or 0.5 ampere is the value of current. तो ये रहा मेरा आंसर, 0.5 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू दिस बैटरी. सो क्या करना है फिर से एक बार बता देता हूं वेरी क्विकली. लुक एट दिस. फर्स्टली आई हैव टू फाइंड आउट दैट दिस इज अ काइंड ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज. दीज आर द 4 पॉइंट्स A, E, you can say C or D. You select either of, because these are connected by solid line. These and these are also connected by solid line. So you since you have taken A, so drop this. 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. 4 points are there. So 4 point. When you find 4 points, it's a kind of quadrilateral. Okay. So in this quadrilateral, you can find that this 1.5 and 3. 1.5 and 3 are like this, and 5 and 2.5 are like this. So Whitson bridge is balanced so that 6 ohms resistance can be neglected very easily. Once it goes off, so you can find out that these two are in series. These two are also in series combination. The resultant of these two are in again parallel combination of these two. उसका रिजल्टेंट आ जाएगा. उसका रिजल्टेंट को इसके साथ में और इसके साथ में सीरीज में ले लो. तो इट्स सारी गेम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के. जितना जल्दी करोगे, क्योंकि आपको जेडब्ल्यू नीट करना है, तो जैसे आपको एग्जाम में करना है वैसे ही मैं करा रहा हूं, फास्ट करा रहा हूं, राइट. तो आपको समझ में आना चाहिए. यू हैव टू थिंक इट दिस फास्ट. आपको इतना फास्ट सोचना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है. दिस इज ऑल्सो नहीं, दिस इज फ्रॉम 2024 PYQ, previous years of question. 2024. A wire of length L, resistance उसका कितना है 100 ohms. It is divided into 10 equal parts. तो मतलब अगर L का रेजिस्टेंस 100 ohm है, तो एक पीस अगर उसको मैं 10 से डिवाइड कर लूं, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट डिवाइडेड बाय 10. तो एक का रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा कितना 10 ohms. क्यों हो जाएगा ये? अगर कोई पूछता है कि ऐसा कैसे, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए. मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू L. लेंथ के साथ में प्रोपोर्शन, जो लेंथ का होगा वही रेजिस्टेंस का होगा. तो एक पीस मेरा कितना हुआ 10 ओम का हो गया. नाउ द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड व्हाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो एक बारी सीरीज में, एक बारी पैरेलल में कनेक्ट किए. तो 5 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, when 5 are connected in series, तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 10 10 10. तो मैंने आगे बताया NR मतलब 10 टाइम्स 1, 5 रेजिस्टर्स आर देयर. एक का रेजिस्टेंस कितना है 5. सो टोटल 50 ohms will be the equivalent of 5 series. This is resistance of series combination. उसके बाद में बोला है कि दूसरे 5 को हमने क्या किया 5 ohms. ये 5 रेजिस्टर्स जो each of 10 ohms are connected parallel to each other, hence हम करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास R by N. So total resistance is 10, which is divided by how many of them are 5 of them are there, so that 2 ohms will be the resultant of parallel combination. तो ये parallel combination है, ये series combination है, parallel combination. अभी ये पैरेलल और सीरीज दोनों को कैसे कनेक्ट किया? दीज टू कॉम्बिनेशंस आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज. तो 5 सीरीज 5 पैरेलल. ये पैरेलल सीरीज वाला और पैरेलल वाला का इक्विवेलेंट उसको कनेक्ट किया है विद सीरीज कॉम्बिनेशन. हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, दिस इज आर सीरीज, दिस इज आर पैरेलल, और उसका इक्विवेलेंट करेंगे तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे. तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आर एस प्लस आर पी. ये कितना हुआ 50, ये कितना हुआ 2. टोटल कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 52. सो 52 ohms शुड बी योर आंसर. वेरी इजी. 10th का बच्चा भी ये कर सकता है आराम से, बिकॉज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही सिर्फ यहां पर कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है. ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास नीट 2024 का है. नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है. लेट्स सी क्या बोलते हैं ये लोग. चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज टू बी बैलेंस. मतलब बैलेंस कौन से को कर सकते हैं, कौन से ब्रिज को हम बैलेंस कर सकते हैं. तो बैलेंस करने के लिए दिस अपन दिस इज इक्वल टू दिस अपन दिस होना चाहिए. मतलब ये आर्म्स जो है ना, ये हमारे पास बैलेंस होना चाहिए. अभी तो ये बैलेंस है ही नहीं. अगर इसको कैलकुलेट करोगे दोनों इक्वल
नहीं है, किसी में भी नहीं है, ऑलमोस्ट सब में सेम दिया है। लेकिन किसको कर सकते हैं, क्या कौन सा वाला हो सकता है, तो चलो देखते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट किस तरफ से जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, द करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन। लेकिन यहां पर एक चीज दी है जिसको हम बोलते हैं डायोड, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायोड। ये सेमीकंडक्टर वाले लास्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका। ये जो डायोड होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, इट अलाउज करंट टू गो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स इन द अदर वन। कैसे, अगर ये वाले बड़े हिस्से को पॉजिटिव के साथ में जोड़े और ये ब्लॉक मतलब पॉइंटेड पार्ट, द पॉइंटेड पार्ट को हम नेगेटिव के साथ में जोड़े, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में, जो छोटे वाला पॉइंटेड उसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव, तो ही वो करंट को पास होने देगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। अगर इसी को अगर मैं रिवर्स बायस मोड में डालूं, मतलब ये पॉजिटिव को बड़े वाले एंड को नेगेटिव के साथ में, छोटे वाले को पॉजिटिव से में कनेक्ट करूं, तो करंट विल गो इन दिस फ्लो इन विल ट्राई टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। लेकिन ये क्या करेगा, डायोड उसको ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये कौन से बायस में हो गया, रिवर्स बायस मोड में हो गया। रिवर्स बायस कनेक्शन में करंट पास नहीं होता। तो यहां पर आप देखो, ये करंट ऐसे ऐसे जाएगा, ये वाला ब्लॉक करेगा। आप देख सकते हो यहां पर ये वाला पूरा ऐसे है, तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक। तो ये तो आने से रहा, ये तो आएगा ही नहीं। यहां पर देखो करंट ये पॉजिटिव है, तो करंट ऐसे 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 जाएगा, ये फिर से उसको ब्लॉक करेगा क्योंकि ये ऐसे है। ये जो डायोड है ये ऐसे दिया है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, तो करंट यहां से पास होगा, तो यहां पर इस रेजिस्टर और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, कम होता है लेकिन होता है। तो इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है, पता नहीं है कि नहीं, माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस डायोड। अगर वो वैल्यू कुछ ऐसी है कि इसका रिजल्टेंट दिस अपन दिस इज इक्वल टू दिस अपन दिस कंडीशन को मैच करे, वैसा फिर से एक बार बोलता हूं, मैच करने के लिए दिस अपन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपन दिस। तो ये कितना होएगा, 10 डिवाइड बाई 15, दिस इज 5 2 सा, दिस इज 5 3 सा, 2/3। लेकिन इसको अगर मैं करूं तो 2/, और यहां पर इसका और इसका पैरेलल रहेगा। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यू सी वन थिंग इज दैट पैरेलल में छोटे से छोटा, मतलब इट विल बी लोअर देन द लोएस्ट, रेजिस्टेंस विल बी लोअर देन द लोएस्ट। इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो इसका रेजिस्टेंस 5 से भी कम होने वाला है। इफ इट इज लेसर देन 5, अगर 5 भी है मान लो, तो भी हो जाएगा 2, मतलब ये 2/3, ये 2 कभी भी बैलेंस होने वाला नहीं। तो सही आंसर तो मेरा यही आएगा। चलो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं, हाउ। तो यहां पर आप देख सकते हो ये रेजिस्टर 5 ओम है, और डायोड का उसके साथ में कैसा दिया है, सीरीज में दिया है। तो इसका 5 है, उसका, ये डायोड हमको ऐसे चूज करना है, वी कैन चूज द डायोड सच वे दैट इसका और इसका जो रेशियो है, मतलब अगर ये 10 डिवाइड बाई 15 है और यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 15 करना है, तो ये 5 ऑलरेडी है, the 5 ohm resistance is already there. We select diode such a way that इसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, तो ये टोटल हो जाएगा 15, और ये 10 डिवाइड बाई 15 10 डिवाइड, इसमें पॉसिबल है। जबकि इसमें 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसमें अगर आप 10 का भी लगा दो तो भी पैरेलल में इससे भी छोटा 10 और 5 का पैरेलल कितना होता है बेटा, 10 और 5 का पैरेलल हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3, मतलब तो बहुत 3 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लोअर देन द लोएस्ट, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये पैरेलल में। तो इसमें सीरीज पैरेलल का भी यूज है, और व्हिटस्टन ब्रिज जो आपको सिखाया उसका भी यूज यहाँ पर, इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। और उसके साथ में तीसरा वाला कॉन्सेप्ट आता है डायोड का, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड। वन वे ट्रैफिक जब भी क्रिएट करना होता है सर्किट में, तो हम ये डायोड यूज करते हैं। डायोड क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट पास होने देता है, रिवर्स में नहीं होने देता। मगर मतलब अगर मैंने यहां पर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कनेक्ट किया तो वो जाने देगा, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर मैंने यहां पर लोअर और यहां पर हायर रखा, तो वो रिवर्स में कभी भी करंट को पास होने नहीं देगा। सही बात। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी 2024 का ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि इजी होने वाला है, कुछ भी होगा। अगर हमको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट, यही होता है। किसी अनपढ़ आदमी को पूछो ये क्या है, तो वो बोलेगा नहीं आता, ये मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर किसी को आता है तो बोलेगा हाँ ये तो बहुत इजी है ना। तो इट इज ऑल रिलेटिव थिंग, इट्स ऑल रिलेटिव थिंग, सारा रिलेटिव थिंग है। तो यहां पर एक
दो पावर रेटिंग वाले हीटर्स लगाए हैं। हीटर मतलब उसके पास कुछ ना कुछ उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। दूसरा भी एक हीटर है जिसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, से R1 एंड R2, और इस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें पावर कंजम्पशन जो है वो है इसका 1 किलोवाट और इसका पावर कंजम्पशन है 2 किलोवाट। चलो ये हमको दिया है। नाउ दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो सबसे पहले इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। ये हो गया पावर 1 पावर 2 R1 R2 ऐसे कनेक्ट किया, और उसके बाद में हमने उसको कनेक्ट किया दूसरी बारी में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, R1 R2 पावर P1 P2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया। टू द फिक्स्ड पावर सोर्स, मतलब जो पावर सोर्स हमारा लगेगा वो फिक्स रहेगा, मतलब इसमें जो पावर सोर्स रहेगा वही पावर सोर्स यहां पर रहेगा। तो हमको कॉमन क्या दिया है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस टू, वोल्टेज। द पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहना चाहिए, और हमको पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट्स इन दिस टू केसेस। पावर आउटपुट का रेशियो हमको फाइंड करना है कि कितना रहेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट P1 अपन P2, नॉट P1 अपन P2 एग्जैक्टली। इस कॉम्बिनेशन में जो पावर कंज्यूम होगा उसको हम मान लो बोलते हैं P डैश, और इसका जो पावर रहेगा जब उसको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करें उसको बोलते हैं P डबल डैश। तो वी हैव टू फाइंड आउट P डैश बाय P डबल डैश, ये फाइंड करना है बेटा। चलो तो सबसे पहले बेसिक फंडा को हम क्लियर करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है उसको पहले अच्छे से समझते हैं हम लोग, तभी हमको ये समझ में आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req, या फिर मैं लिखूं R सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। पावर, अभी इसका पावर 1 किलोवाट है, मतलब क्या, अगर इसको मैं किसी पावर सप्लाई, मतलब ये वाले पावर सप्लाई से कनेक्ट करूं जो भी है, इसको भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करूं जो कि V है, सबको इक्वल से करना है सोर्सेस से। तो इसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो पावर का रिलेशन फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन R1, ये याद रखना है बेटा अपने को जो हमने इसमें निकाला। इसमें भी देखो इसका रिलेशन क्या होगा, P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R2, जो इसके कॉम्बिनेशन में आएगा। या पावर इज गिवन टू मी, पावर P1 एंड पावर P2 बोथ आर गिवन टू मी, तो इसका रेसिस मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये पावर अगर ये 1 किलो है तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 वेरी इजीली, बट आई विल पुट दैट वैल्यू लेटर। अभी मैं वैल्यू इसको रखूंगा नहीं रखूंगा। चलो इसमें से फाइंड कर लो R1, पहले लिखो सिर्फ V स्क्वायर अपन P1, और वैसे ही यहां पर R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2। तो ये हो गया R1 एंड R2। बस अभी इसको सीरीज और पैरेलल में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है, वेरी इजी। सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पुट इट ओवर देयर। तो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन P1 V स्क्वायर अपन P2, और यहां पर अगर मैं लिखूं तो V स्क्वायर अपन इक्विवेलेंट पावर ऑफ सीरीज आएगा। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज, और यहां पर लिख सकते हैं PP, चलेगा चलेगा। तो सिंस V is common in all the circuits, so that V gets out, V square divide by parallel, V square को अगर मैं कॉमन निकाल दूं then it is going to be like this, we cancel, 1 upon P series is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2। अब पावर तो मेरे पास है दोनों का पावर, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट नेट पावर कितना हो जाएगा। So net power in series combination will be equal to, I can find out using the formula P1 P2 upon P1 plus P2, जो कि हम जब भी पैरेलल होता है तब यही करते हैं। कितना है वहां पर देखो, 1 किलोवाट 3 किलोवाट, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट 2 किलोवाट, और नीचे आएगा 1 प्लस 2, so it's gonna be 2 by 3 kilowatt। Now let's find the same for the parallel combination। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया। पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में क्या होता है उसका, तो पैरेलल में होता है 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस
1/R2। अभी सोच लो, यहां पर भी मैं वही कर सकता हूं, अगर मैं v स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड बिकॉज v सेम है, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं यहां पर, तो ये ऑटोमेटिकली, ओ माय गॉड, ऑटोमेटिकली आई एम गोना गेट v स्क्वायर अपन r मतलब पावर इन पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू दिस इज v स्क्वायर अपन r1 मतलब p1, v स्क्वायर अपन r2 मतलब p2। तो इसमें तो बहुत इजी हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल में सीरीज जैसा हुआ पावर में, और पैरेलल में सीरीज में पैरेलल जैसा, पैरेलल में सीरीज जैसा हुआ। आप समझ सकते हो, ये हो जाएगा 3 किलोवाट पावर पैरेलल। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड सीरीज एंड पैरेलल का रेशियो, सीरीज पैरेलल का रेशियो। सीरीज कितना है बेटा मेरे को बताओ इधर, 2/3, पैरेलल का कितना है 3, सब किलोवाट में, तो ऊपर भी किलोवाट नीचे किलोवाट, विल गो ऑफ, ये 3 नीचे आएगा, 3 3 9, so 2/9, my answer should be 2:9, is it that? Yes, 2:3 is my answer। See, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अगर अच्छे से समझो, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो किलोवाट दिया है पावर, तो उसका V और R के साथ में रिलेशन ये होना चाहिए। एंड सिंस पावर इज ऑलरेडी गिवन टू मी, तो मेरे को फाइंड क्या करना है, R1 और R2। एक बारी R1 और R2 आ गया, तो R1 R2 सीरीज में है तो हम ये करेंगे, R1 एंड R2 पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे। ये पैरेलल का रिलेशन है, ये सीरीज का रिलेशन है। सब जगह पे मेरे को वैल्यू किसकी रखनी है, R की रखनी है वैल्यू। इसमें R की वैल्यू रखने से अच्छा है V स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे, है ना, V स्क्वायर अपन R करोगे, यहां पर R कौन सा है, पैरेलल वाला इक्विवेलेंट है, आप कर दोगे तो आराम से ये वाला आ जाएगा, तो इजी है, यू कैन अंडरस्टैंड। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि हमको यहाँ पर रैपिड फायर करना है, जल्दी से करना है, कैसे करना है क्विकली, सब उसी को तो सीखना है। तो मैं धीरे धीरे पूरा मेथड करके सिखाऊंगा, पूरा डिटेल में, यहाँ पर पूरा डिटेल में ही किया, लेकिन रफ वर्क करके कर रहे हैं, क्योंकि आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। तो बैटरी का ईएमएफ मेरे को 10 वोल्ट दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1 ohms, वो भी दिया है मेरे को। When it is connected to an external resistance, जब बाहर किसी रेजिस्टेंस 4 ohms को ज्वाइन किया जाए, तो फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है द टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया कि टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा इसका। टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी से निकलने वाला, यहां पर ये दोनों टर्मिनल पे कितना रेजिस्टर बाहर निकलेगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट। बहुत ही ईजी है टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना। सबसे पहले दिस बैटरी इज इन कनेक्शन विथ 1 ohm एज वेल एज 4 ohm। तो ये दोनों 1 ohm और 4 ohm कैसे हैं, यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो 1 और 4 का सीरीज क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो टोटल हो जाएगा 5 ohm। इजी। नाउ करंट फाइंड करो। करंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IR विच गिव्स मी I इज इक्वल टू V/R। Voltage is 10, resistance is 5, current is 2 ampere. So 2 ampere current will pass through this entire circuit, 2 ampere current. चलो गुड। अब टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला, V इज इक्वल टू E माइनस IR। E मतलब इसका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां पर दिया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 है। सो 10 वोल्ट माइनस करंट इस सर्किट में से कितना जा रहा है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितना है, 1, सो 10 माइनस 2 विच इज 8 वोल्ट विल बी माई टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। मतलब ये जो पूरी बैटरी है वो कितना पोटेंशियल इसको देगी, तो उसका ईएमएफ, उसकी कैपेसिटी 10 की है, लेकिन इसमें से कुछ पावर लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस है, वो भी तो पावर कंज्यूम करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर भी होगा। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, 2 का, तो 10 minus 2 will give you 8 volt। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2024 एंड 2025 के सारे नीट के क्वेश्चन हो गए। दूसरे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।